सर यहाँ सर यहाँ बता दीजिए कहाँ पर एक एक जगह सब जगह थैंक यू। स्माइल सर। सर यहाँ से यहाँ पे सर रुक गया सर। शोएब और फरहान एक मिनट सब साथ में चलो आ जाओ। एक काम करें बाइट्स बाद में करते हैं पहले स्टार्ट करते हैं। आ जाओ थोड़ा आ गया Producer Mr. Naren Das Lalwani to say a few words. I'm speaking on behalf of my producer. He has been in Dubai for last 30 years basically. He used to read all the papers and basically in the papers he used to read everything about the Indian Army. For the first time when I met him, he told me very clearly, ब्रजेश ऐसी स्क्रिप्ट देख रहा हूँ जो देशभक्ति से भरे, मुझे कोई दूसरी स्क्रिप्ट नहीं चाहिए. If you don't have a देशभक्ति की स्क्रिप्ट, I don't want to hear any narration. You might have the best script which is romance, thriller, action. I don't want. मुझे देशभक्ति चाहिए. The one thing I went back, वापस आया दूसरे दिन, and I narrated him Battalion 609, and he said, ये perfect script. And I'm looking for this, and that day he decided to make the film called Battalion 609. That's from the producer's side. When I speak about myself as a director, I will not speak about the coin, how did I get the film, but I'll say something. ऐसा producer मिलना बहुत मुश्किल है. He's the best, he's a diamond, he's a heart of gold. I've worked with Anil Kapoor, I've worked with Sudeep Mishra, I've worked with Rajkumar Sandesh, I've worked with the biggies in the industry. But I'll say, I found the big man here. Thank you very much, Ram Lalwani ji, for supporting me and making Battalion 609. If Shakil Hashmi knows, he's doing everything to release the film, and the whole star cast knows he's done the best for the film. Thank you very much, ji, Lalwani ji. Thank you, thank you, thank you very much. Bottom of my heart. Thank you so much. No, it's okay, sir.
Okay, now I'll request our music director, Mr. Shailendra Santhi, to say a few words. Sir. Hello everybody. सबसे पहले थैंक्स राजी जी जिन्होंने मुझे इस फिल्म के म्यूज़िक के लिए मौका दिया। हाँ, सबसे पहले मैं ये बताना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि इस फिल्म का सबसे पहले साइन होने वाला बंदा मैं हूँ। फर्स्ट डे इन्होंने मुझे बुलाया और वेरी फर्स्ट डे मैं जैसे से मिलने गया था और कुछ मैंने कहा कुछ मुझे सुनाने के लिए बोला, मैंने सुनाया और ब्रेजी ने जैसे बोला बिल्कुल राज जी के बिल्कुल सही बोला। मैं भी शॉक था फर्स्ट डे में, खाली कुछ सुनाया और उन्होंने सीधे चेक निकाल के मेरे हाथ में रखा। ये अब किसी को भी साइन कर सकते थे लेकिन इन्होंने मेरे पर ट्रस्ट दिखाया जिसके लिए थैंक यू सो मच। गाने कोशिश की है अच्छे बन सके जितना मैं कर सकता था और सब राजी ने ही डिसाइड किए हैं। आप लोगों को पसंद आएंगे पूरी ऐसी उम्मीद करता हूँ और सारी टीम को विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद। Yes, thank you so much, sir. Now, anyone media any questions? This is the time to ask them. Okay, we'll request Mr. Shobhi Abraham to please say a few words. सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना वक्त निकाल के हमारे इस खास मौके पे आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं पहली चीज़ हमेशा बहुत ख़ास होती है, तो ये पहली फिल्म है एज एन एक्टर मेरे लिए, एज ए प्रोड्यूसर इनके लिए, एज ए डायरेक्टर इनके लिए। तो बहुत सी यादें जुड़ी हैं इस फिल्म से जब हम लोग शूट करके आए थे और जब इसको की थी। फाइनली आज उसका रिजल्ट देखने को मिला है, आप सबको देखने को मिला है। तो बस आप सबसे यही गुजारिश है कि अपना प्यार बनाए रखें और हमारी फिल्म को सपोर्ट करें, हमें अपना प्यार दें। और 11 जनवरी को फिल्म रिलीज़ हो रही है 2019, तो प्लीज़ इसको जाके देखें, अपना प्यार दें बहुत सारा। I said about the producer, I forgot to say about my cast. This is the best cast. Vicky is not there. उस पर शागे लेट आया था. Vikas is not there. Elena है. But this is the best cast I got. Best. Thank you, thank you. हाँ, मुझे बराबर बोलो, अच्छी तरह बोलो. So much love I've never seen in a film. My God, everyone likes each other. Yes. So, any questions, media now? Can we give the mic to him, please? Tripathi ji. Watching this trailer, we just got to see that there is a high dose of patriotism. That is absolutely good. When it comes to the title of the movie, Battalion 609, how does it relate to the story? Okay, this is a story. It goes 609. We were thinking of a title. Subtitle सोच रहे थे. ये वो सरहद, like you know, wires and lot of things. And suddenly लालवानी जी और मेरे दिमाग में एक बात आई. When a group and a huge troop of people around when the army walks, it's called battalion. So he said, why don't we keep the name battalion and match it with 609? The whole troop is battalion 609. ये टाइटल वहाँ से निकला सर, जैसलमेर बॉर्डर से. Is it? Yeah. एक और मूवी आ रही है उरी करके, वो भी एक सर्जिकल स्ट्राइक पे है। तो उस मूवी की स्टोरी में, इस मूवी की स्टोरी में काफ़ी कंपैरिजन होगा, ऑडियंस कंपैरिजन करेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उरी एक रियलिटी फिल्म है, इट्स अ गुड फिल्म। हमारी फ्रिक्शन फिल्म है, इट्स अ सुपर डुपर गुड फिल्म। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज बोथ द स्टोरीज आर टू डिफरेंट स्टोरीज एंड आई हैव समथिंग अ बंच ऑफ पैक व्हिच विल सरप्राइज द ऑडियंस। This is a surprising film for you. मतलब जब से फिल्में बन रही है ऐसी वॉर फिल्म आज तक नहीं बनी होगी. It's very surprising. You'll be surprised when you see the film. It has a pack of surprise. You have to see the film, please. Trailer launch है, film launch नहीं. 11 जनवरी. फिल्म रिलीज सीन इन 11 जनवरी से, ट्रेलर लॉन्च। मैच का क्या मतलब है, क्या सर? वही तो कहानी, वही तो मैं सिनेमा घर में आपको बोल रहा हूँ, आप जाके देखिएगा प्लीज आइए सिनेमा घर में देखिएगा प्लीज सर, कुमार सर प्लीज। कितने प्रिंट लगा रहे हैं ये बताइए, ये तो बता दीजिए कितने प्रिंट लग रहे हैं, कितनी जगह पर रिलीज कर रहे हैं? मेरे डिस्ट्रीब्यूटर साहब है, वो सही जवाब देंगे, मैं नहीं दे सकता। प्लीज बताइए कितने प्रिंट लगा
जी जी कितने प्लेन लगा रहे हैं? कुमार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है बटालियन 609 की टीम में। इसके हम लोग अभी जो नॉर्थ इंडिया हमारा टारगेट है वो 450 प्लेट का टारगेट है जी। और जैसा कि हमारे प्रोड्यूसर हैं नरेंद्र लालवानी जी, वो दुबई से है, यूएई से है, तो वहाँ पर भी हम रिलीज़ कर रहे हैं कुछ प्रिंटों से, कुछ 50 प्रिंट से वहाँ पर भी हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है। बाकी भी और टेरिटरी में बात चल रही है। तो जो माध्यम होते हैं पब्लिसिटी के, विज्ञापन के, वो सारे इन्होंने हमें सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, कि फिल्म को रिलीज़ करने में जो माध्यम होता है वो होता है विज्ञापन और पब्लिसिटी का। वो इन्होंने फुल सपोर्ट दिया हुआ है, चाहे वो टेलीविज़न का हो, प्रिंट का हो, होर्डिंग का हो, वो सारे माध्यम से इन्होंने इस फिल्म को सपोर्ट किया है। और 11 जनवरी एक अच्छी डेट है, क्योंकि उस डेट को हमारी रिलीज हो रही है और लड़ाई भी बहुत है, उरी है, हम भी हैं, बट उरी का अपना एक टारगेट है, हमारा अपना टारगेट है, तो दोनों के अपने अपने टारगेट के हिसाब से हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। हम ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं है, ओवरफ्लो नहीं जाएंगे, हमारी एक्सपेक्टेशन पे हम अपना टारगेट पूरे करेंगे। थैंक यू। बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। बहुत अच्छा। दैट इज मिनिमम थिएटर उसने बोला है, बहुत कम बोला है, बहुत ज्यादा दे रहा है, उसका भी दिल बहुत बड़ा है। हाय हाय, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। पहले मैं जवाब देता हूँ क्या क्या दिक्कतें हैं एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर। सबसे पहले एक मिनट सर, पहले तो प्रोड्यूसर के मिलते सर, वो सबसे बड़ी दिक्कत वो होती है। सबसे पहले मैं अपने देश को बहुत प्यार करता हूँ और मैं लास्ट 35 ईयर से दुबई में हूँ। मैं अपने देश को बहुत प्यार करता हूँ। मुझे मौका नहीं मिल रहा था कुछ ऐसा, बट जब भी मैं डायरेक्टर से मिला और उन्होंने मेरे सामने स्क्रिप्ट रखी तो वन टच मेरे को अच्छी लगी, बट सेकंड टाइम देखी तो 1000% अच्छी लगी। और उसी के लिए और जब भी मैंने इनको, एक्चुअली ये राइटर थे और इनका टैलेंट देखकर मैंने इनको डायरेक्ट दी। और आप बोलो आगे बताइए। Actually, I joined as a writer for the first film. We will make a film which you'll come to know right now after some time. मैं राज नहीं कर रहा हूँ। हाँ। The whole thing is कि जब writer as a film, I got a writer of the film. I was looking, we are doing scripts. बाद में इन्होंने बोला, इन्होंने 2-3 डायरेक्टर ढूंढे, फिर और 2-3 डायरेक्टर. We were not satisfied the way they were speaking about how to make cinema. Then he thought, let me give a chance to Brijesh. I was begging him कि सर दे दो, राइटर हूँ, डायरेक्टर बनना है, राइटर हूँ, डायरेक्टर बनना है। इन्होंने कहा बाबा जी, अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है वो बाबा जी का फोटो लगा था ऑफिस में, उन्होंने कॉइन वहाँ से निकाली, बोले लेट्स डू अ टॉस। मुझे शोले याद आ गया सर। उन्होंने सिक्का उछाला, बोले हेड जाए तेरा, टेल जाए मेरा। द फर्स्ट टाइम इट वाज हेड, सेकंड टाइम इट वाज अ टेल, थर्ड टाइम आई एम स्टैंडिंग हियर। तो व्हाट शुड बी, यू विल नो इट। जेपी दत्ता साहब, अगर कोई भी वॉर की फिल्म होती है, जेपी दत्ता साहब जो जिस तरह से फिल्म बनाते हैं, यू ऑलवेज कितना आपने उनको स्टडी किया या हाउ मच वर यू इंस्पायर्ड उनकी फिल्मों से? ही इज अ लेजेंड, यू कांट से एनीथिंग, यू कांट डिस्क्राइब अ लेजेंड। जेपी साहब इज अ लेजेंड। He made Gulami, he made Border. What films he made, he is a legend. I have no comparison to him. No comparison, sir. JP साहब is good. उनकी लास्ट वाली फिल्म पलटन, actually not really. इंसान से गलती होती है। नहीं, तो मेरा कहना है कि जब फिल्म doesn't do well actually, तो थोड़ा ये होती है कि हमारी फिल्म भी उसी लाइन पर है। ये थोड़ा मैं डिफर करूँ, मेरी फिल्म थोड़ी अलग है। उन्होंने एक सवाल पूछा USP, I said a cricket match. मेरी फिल्म अलग है सर। None of the war films is based like my film. I'm very clear about it. None. आज तक जितनी भी आपने war films देखी होगी ना, ये फॉर्म फिल्म नहीं देखी होगी, और इसका आइडिया कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है। My question is to Shoaib Ibrahim also. पहली फिल्म है आपकी, war film जैसे कहते हैं, टफ फिल्म होती है। What was the reason to choose this film? Being a romantic
या फिर उसमें एक लव की कहानी है इसी तरह से है? क्या कुछ किरदार के बारे में जानना चाहिए? सबसे पहले मैं बोलूँ सर कि जब हम एक्टर्स खासकर जब हमारा कोई गॉडफादर नहीं होता और जब हमारे पीछे किसी सर के ऊपर किसी का हाथ नहीं होता तो हम उस टाइम सिलेक्टेड नहीं हो सकते हैं। और एज एन एक्टर आई थिंक ये एक एक्टर जब तक एक एक्टर कंप्लीट एक्टर नहीं होता जब तक वो वॉर फिल्म नहीं करता। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं जो पहली मूवी कर रहा हूँ वो वॉर फिल्म है। तो आई थिंक मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और यस, और पहली जैसे मैंने बोला पहली चीज़ हमेशा बहुत ज़्यादा खास होती है और अम्मी पापा भी यहाँ पे हैं सब, तो बस आज कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मुझे याद आई हैं जब मैं 9 साल पहले मुंबई आया था। एक सपना लेके आया था कि यार मुझे कुछ करना है इस लाइन में, मैंने डीडी किया और आज इंशाल्लाह 11 जनवरी को मेरी पहली फिल्म रिलीज़ होगी। और रही बात फिल्म की कैरेक्टर की, तो आई थिंक कैरेक्टर पे मुझे इतना वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी एक्टर को, जब आपके पास डायरेक्टर इतना अच्छा हो कि उसने हर चीज़ पढ़ी हो। और आई थिंक कहते हैं कि डायरेक्टर के लिए, एक राइटर के लिए जो उसका फिल्म होता है उसका बेबी होता है। आई थिंक इससे अच्छा मुझे कोई समझा नहीं पाया वो। और हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम लोग बीकानेर में शूट कर रहे थे तो वो 40-50 डेज़ हम लोगों ने एक जैसे ज़िंदगी होती है ना कि ऐसे हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे रहते हैं, तो हम लोगों ने वो थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस की थी। तो इस ओवरऑल बहुत अच्छा था। अब बस रिजल्ट है आप सबका, आप सबके प्यार का कि आप लोग क्या फीडबैक देते हैं। थिएटर दिला दो, मैं 26 को आऊँगा। थिएटर दिला दो, थिएटर नहीं मिल रहा मुझे। Thank you so much. Rest of the मैं अपनी सेकंड फिल्म दिसंबर 2019 में एक और पिक्चर रिलीज करने जा रहा हूँ और उस पिक्चर का नाम है आई एम नायक। I'm on stage, please. इसको खिलाए। सर इधर मत करना। It's a very interesting cake which is there. सर Wow. किसने डिसाइड किया था ये केक? अरे उड़ाइए मत सर, उड़ाइए मत इधर। Interesting cake. Give me clap, please. Give me a huge round of applause. Thank you so much. ट्रायल मुझे फर्स्ट टाइम दिखाया था तो मैंने इनसे एक ही बात बोली थी, मैंने कहा ये फिल्म आपको इज्जत बहुत दिलाएगी क्योंकि पैसे की गारंटी तो जीरो की भी नहीं है। Okay, come on. 1, 2. Wait. तो उनको एज अ किंग हम लोग ट्रीट करते हैं, तो इसलिए ये बटालियन का जो एक केक है। Okay, so that was the cake cutting. Now I request the media to please move and proceed outside for the media bites. One-on-one media bites outside. गाना बंद करो भाई। बहुत शर्म आ रहा है बात बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो आपके किरदार के बारे में जानना चाहिए, आप प्ले क्या कर रहे हैं बटालियन 609? आप बटालियन 609 में मेजर कामराज मिश्रा का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और जो वो बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर है और उसके अंदर ही अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट है कि पाकिस्तानियों से बहुत चिढ़ता है, बहुत नफरत करता है, लेकिन उसे प्यार भी होता है तो पाकिस्तानी लड़की से होता है। तो उसकी जो पूरी जर्नी है कि जैसे पहले वो क्या समझता है उसके बाद में क्या चीज़ें होती है, तो इसकी पूरी जर्नी है।
ओके, ये आपकी डेब्यू फिल्म है, तो कितने नर्वस फील करेंगे कि आपकी पहली, और क्या इसमें खासियत है जो आपने यही कैरेक्टर चुना एज अ डेब्यू? पहली है यस, और बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है, बहुत ज़्यादा ही खास है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि पहली चीज़ हमेशा पहली होती है, पहला एक्सपीरियंस हमेशा पहला होता है। और रही बात चूज़ करने की, तो आई थिंक एक एक्टर कभी एक मुकम्मल एक्टर नहीं होता जब तक वो वॉर फिल्म ना करे, और आई एम ब्लेस्ड कि मेरी पहली फिल्म वॉर फिल्म है। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, बहुत कमाल है, बहुत यूनिक है, और इट्स अ वॉर फिल्म बट डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर, जो आपको देखने में मज़ा आएगा, हमें करने में उतना ज़्यादा मज़ा आया है। तो और जब अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं और अच्छे अच्छे डायरेक्टर हों तो कौन नहीं करना चाहेगा। इसमें 4 सॉन्ग आए थे और हर एक फ्लेवर उसमें जो है करेक्ट किया है। जैसे कि भी आपने गाना सुना है जो बहुत ही देशभक्ति का दमदार सॉन्ग है कि गरम इतनी बॉडी के तेजाब मूदते हैं, हम हिंदुस्तानी किसी के आगे नहीं झुकते हैं, ठुकते हैं, और जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ हाथ डालते हैं। रोमांटिक सॉन्ग है, इमोशनल सॉन्ग है, और एक थोड़ा सा फनी सॉन्ग है जो कि आप जब देखेंगे सुनेंगे तो आपको समझ। ओके सर, आपने इसमें ये देखा कि क्रिकेट मैच होता है एक ज़मीन के लिए, जो जीतेगा उसकी ज़मीन हो जाती है। अगर ऐसे रियल लाइफ में होगा तो क्या कैसे होगा? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट के हिसाब से सोचनी चाहिए, हर चीज़ को रियल लाइफ से नहीं जोड़ना चाहिए। हमारी फिल्म, बॉलीवुड, टीवी सीरियल, कभी कभी हमें सिर्फ उसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पे लेना चाहिए, तो ये बस वही है। ओके, दीपिका जी को आपको मानते हैं डेब्यू कर रही है, उनको आपने कुछ बताया आपके डेब्यू के बारे में, जो मूवी है? उसको पता है कि मैंने मूवी की है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी मैं उसे बता नहीं पाया हूँ कि बाहर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अभी 30 को फिनाले है, इंशाल्लाह 11 को रिलीज़ है, तब तक वो बाहर आ जाएंगी, और 1 तारीख के बाद जो भी प्रमोशंस होंगे उसमें आपको देखने को मिलेंगे मेरे साथ। ओके, फिनाले के बाद दीपिका जी विनर होगी, क्योंकि फिनाले ये बिग फिनाले ही है, क्या आपको क्या देखिए, ये चीज़ मैं बोलने वाला नहीं होता हूँ। जब दीपिका बिग बॉस जा रही थी तो मैंने सिर्फ उससे एक चीज़ बोली थी कि जीतना ना जीतना हमारे बस में नहीं है, बस मैं तुम्हें फिनाले में देखना चाहता हूँ, उसके बाद जो हमारी देश की जनता चाहेगी, जो उसके नसीब में होगा, जो ऊपर वाला चाहेगा वो होगा। एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा ज़्यादा बोल जा रहे हैं, इनको पूरा विश्वास ही कि दीपिका ही जीतेगी। चलिए, सर के मुंह में घी शक्कर। सर, आपको कब लगा कि इस तरह की मूवी बनानी चाहिए? यू आर फ्रॉम दुबई एंड यू कम इन मुंबई। जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, और बहुत छोटी उम्र में मैं दुबई चले गया था, तो हिंदुस्तान मुझसे बहुत छोटी उम्र में दूर हो गया था हिंदुस्तान से, तो अपने देश से मुझे बहुत लगाव था, बहुत लगाव था। और फिर मैं एक बार जब बॉम्बे घूमने आया, मैं इसी होटल में रुका था मैरिड में, ये भाई साहब मिले हमें, डायरेक्टर साहब, तो वैसे ही हेलो हाई हुई, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ फिल्मों की। यार मेरे को तो बहुत इन चीज़ों का क्रेज़ है। फिर इनसे दोस्ती बढ़ती गई। फिर उन्होंने एक ऑफ़िस दिलवाई मुझे, वो ऑफ़िस मैंने हायर की, और वहाँ से फिर इनकी स्क्रिप्ट देखी मैंने। इसके पहले ये नहीं होते थे, तो और भी मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट देखी, बट मुझे स्क्रिप्ट में इतना मज़ा नहीं आया जो इनकी स्क्रिप्ट में मज़ा आया। और वो स्क्रिप्ट थी देश भावना से जुड़ी हुई एक स्क्रिप्ट थी जो मुझे बहुत पसंद आई और बहुत अच्छी लगी। बाद में उसको स्टार्ट कर दिया हमने। सेकंड फिल्म आपने जो इनॉग्रेशन किया आज, पर कौन स्टार होने वाले थे? सेकंड फिल्म आपने पोस्टर लॉन्च किया, उसमें हीरो कौन है? एक्टर है, दिस इज माय सिस्टर सन, लुकिंग लाइक एक्टर्स। इसका पूरा एक्टिंग का कोर्स किया हुआ है, मैं उसको लॉन्च करूँगा नेक्स्ट ईयर, और टाइटल नाम है आई एम लायर। वैसे मैंने उसकी जो पिक्चर दिखाई है वो लायर के जैसे ही दिखाई है कि बाद में वो उसका फेस दिखे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल बॉय। आप क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में? आज आपकी ट्रेलर लॉन्च हुई है, कितना एक्साइटेड है? रिलीज बहुत ही जल्द होने वाली है। अगर 2 शब्दों में बहुत आई एम टू मच एक्साइटेड अबाउट इट्स एक्साइटमेंट। इट्स समथिंग आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, बबल आप अंदर फील करते हो, वो हार्ट में फील करते हो, माइंड में दौड़ रहा है, इट्स एवरीवेयर इन द ब्लड। आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। ओके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई आपकी मूवी क्लैश हो रही है उरी से लेकर, सो डू यू थिंक कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी, क्योंकि बड़ी बजट की मूवी है, एक बड़ी स्टार है उसमें, कोई कहीं ना कहीं आपको मूवी को क्लैश या इफेक्ट होगी? मैं किसी बड़े आदमी का नाम नहीं ले जाऊँगा, ना बड़े पिक्चरों का नाम लेकर। आप 6 महीने की ट्रेंड उठा के देख लिए, अंडरडॉग्स हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। शेयर की आपकी प्रेसिडेंस मेरी वही, जैसे कि ब्रिजेश सर ने भी बोला था कि उनका एक उनकी फिल्म रियलिटी भी बेस्ड है, हमारी टोटल फिक्शन है,
और रही बात आने की, तो मुझे लगता है कि हमारी फिल्में, उनकी फिल्में डेफिनेटली बहुत अच्छी है। रॉनी स्क्रूवाला है, अपना विकी कौशल है, डेफिनेटली अच्छी होगी, बट हमारी भी कम नहीं है। और हमारा टिपिकल बॉलीवुड मसाला है, और इंसान अंदर जाएगा, उसके बाद बाहर आएगा तो डेफिनेटली उसके चेहरे पे मुस्कान लेके आएगा। अच्छे गाने हैं, एक्शन फिल्म है, वॉर फिल्म है, और आई थिंक हम लोग भी डिसअपॉइंटेड नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, आप सबको ये प्रॉमिस है। Okay, so as you mentioned, you have no godfather in the, that is why you have no ready to choose the character. How do you see the Bollywood industry? Those who have a godfather in this industry, do you feel it is very difficult to get in the industry? भाई था ना, भाई था, गॉडफादर नहीं था, भाई था। आई थिंक देखिए, मैं उस चीज़ में वो चीज़ नहीं बोलूँगा कि ठीक है, हर इंसान का अपना अपना काम करने का तरीका है। लाइक अगर मैं उसे नेपोटिज्म नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर एज अ प्रोड्यूसर मैं सोचूं, अगर मैं एज अ प्रोड्यूसर हूँ तो डेफिनेटली अगर मैं फिल्म बनाना चाहूँगा तो मैं अपनी किसी खास को लॉन्च करना चाहूँगा। बट हाँ, ये है कि वो आई थिंक जल्दी आ जाते हैं, हम लोग को थोड़ा सा वक्त लगता है, तो अब ये हमारा टाइम, अब हम आएंगे इंशाल्लाह। इट्स बेसिकली आजकल स्क्रिप्टें चल रही हैं। वेरी गुड एक्टर। हाँ, ये सलमान बनेगा बड़ा होके, थोड़ा और आगे कि सलमान बनेगा। दिस इज माय ब्लेसिंग। सलमान जैसा कोई नहीं हो सकता। ओके सर, लास्टली क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस को? हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर लास्टली? अपने फैंस से बस यही गुजारिश करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि अब तक जिस तरीके से प्यार देते आए हैं, और वैसे ही प्यार दीजिए। पहली फिल्म है हम तीनों आपके सामने बैठे हुए हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत दिल से फिल्म बनाई है पहली फिल्म में, तो आप सबका प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए। और यस प्लीज़ 11 जैन को जाइए, 11 जैन 2019 हमें फिल्म देखिए और उसके रिव्यूज़ भी बताइए हमें, तो हमें आप सबका इंतज़ार है कि प्लीज़ आप देखें और हमें ढेर सारा प्यार। Are you inspired with Salman Khan? सी बॉलीवुड इंडस्ट्री में शाहरुख सर एंड सलमान सर, इसके आगे कुछ नहीं। ओके, तो लगान से कोई इंस्पायर तो नहीं है? लगान जो मैच आप मेंशन कर रहे हैं, इट इज़ नथिंग इंस्पिरेशन, कुछ नहीं है। लगान में कुछ और था, यहाँ पर कुछ और है, ये आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी। लगान वॉज एन एरा फिल्म जो बहुत पुराने टाइम में जब अंग्रेज आए थे, ये हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, नॉट वेरी डिफरेंट, नथिंग टू डू विद लगान। लगान इज वेरी डिफरेंट, वी आर वेरी डिफरेंट। सब जर्नी बहुत ही अच्छी रही है, टचवुड, और बहुत ही इमोशनल भी रही है, बहुत ही इंटरटेनिंग भी रही है, बहुत से लोगों का प्यार मिला है। और टेलीविज़न से आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ कि टेलीविज़न करते करते अभी है, तो उसके बाद मुझे फिल्म मिली है। और आई थिंक लोग कहते हैं कि अभी टेलीविज़न और बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, आई थिंक अब वो बचा नहीं है, बिल्कुल करीब है। तो आप आज की डेट में मेरे ख्याल से चाहे वो टेलीविज़न हो चाहे वो बॉलीवुड हो, सिर्फ कंटेंट चलता है। तो और यस, अभी तक बहुत ही अच्छी जर्नी रही, इंशाल्लाह दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसी रहे, और जैसे ही आप सबका प्यार मिलता रहे तो वैसे मिलता रहे। यस, फिनाले में है और बहुत ज़्यादा खुशी है उसको देख के, बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है उसको देख के कि जिस तरीके से डिग्निफाइड में उसने अपनी पूरी जर्नी तय की है। तो अब बस उम्मीद करता हूँ कि इतने आगे तक आ गए हैं, तो बस थोड़ा सा और बचा है फिनाले। तो आई होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा हो, जो भी हो इंशाल्लाह। जीत के आएगी तो खुशी होगी, और नहीं भी जीत के आएगी तो भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मुझे पता है, हम लोग जानते हैं कि उस भले वो ट्रॉफी ना जीते, लेकिन उसने क्या जीता है, लोगों के दिल जीते हैं, वो शायद आपको बाहर आके ही पता चलेगा उसे। Thank you. Congratulations for today's trailer launch. आप किरदार के बारे में पहले से जानना चाहिए, आप क्या प्ले कर रहे हैं इस मूवी में? Thank you so much, and I'm really happy for having you all here. My character is, it sets me apart from the film. Actually, it's a very bubbly kind of a character. So, जितनी seriousness होगी फिल्म में, तो whenever you'll watch me, you'll feel lighter. So that's how that's the part in the film. Okay, ma'am, I am not wrong. It's your debut movie. What was the reason to choose this movie? Because most of the people choose glamorous role for the debut. Yeah, basically, while I did not choose this film. I think the film chose me. When I met Mr. Brijesh Batuknath Tripathi, and that's how we came across each other, and he liked me for the character he was looking for Bijli. The way I played the character, he picked me with the first meeting itself. So I think he chose me. I did not choose. Okay,
what was the challenges you have faced while shooting in a real location? It was great. It was altogether a new experience because it's like everybody has worked hard, not just actors. I feel that even the director and everyone, for everybody to set a real location and bring into on screen, on a canvas, it's a difficult part, and everybody has put in everything, so it was great. I mean, yeah. Okay, शोएब से बात की बटेरियन के अलावा वो एक चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड है, वो है बिग बॉस की फिनाले जो है दीपिका जी उसमें फाइनल में, तो आप कितने एक्साइटेड हैं उसके लिए? मैं यस, मैंने अभी कहा कि मैं शोएब और दीपिका इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट कपल, एंड जब मैं शोएब के साथ शूट कर रही थी उस टाइम पे दीपिका के हाथ के बने कुछ ना कुछ चीज़ें आती थी सेट पर, और मैं थोड़ी सी सरप्राइज़ होती थी कि कोई इतना अच्छा कैसे बना सकता है, बिकॉज आई एम अ वेरी बैड कुक। सो मैंने पर्सनली कॉल किया था दीपिका को, मैंने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया था, और आज मतलब मेरा जो इम्प्रेशन दीपिका का जो मुझ पर था, दैट शी इज़ सच अ हम्बल पर्सन, सच अ नाइस पर्सन, वो चीज़ मैं जब देखती हूँ आज बिग बॉस की स्क्रीन पर दीपिका को, आई फील एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हर दैट शी इज़ बीन कंसिस्टेंट, एंड मैंने अभी शोएब से कहा दैट आई हैव अ गट फीलिंग दैट दीपिका इज़ गोना विन द टाइटल। ओके, दीपिका के अपोजिट आपको क्या लगता है कौन रहेगा? बहुत टफ कॉम्पिटिशन होगी उनके साथ। करण आई थिंक, करण या तो श्रीशांत, करण या श्रीशांत, दैट्स व्हाट आई थिंक, बट समहाउ आई फील दैट दीपिका इज़ लीडिंग अहेड काफ़ी हद तक। ओके मैम, फाइनली क्या कहना चाहेंगे? आपकी मूवी 11 को रिलीज हो रही है, व्हाट डू यू लाइक टू से टू योर फैंस? आई वुड लाइक टू से कि अब तक आपने मुझे जितना प्यार दिया है, प्लीज़ जाके फिल्म देखिए, सबने बहुत मेहनत की है, एंड this is kind of a film like war based, plus there's lot surprise elements in the film, and I am damn sure that this is not going to disappoint you. This is going to give you happy faces when you step out of your multiplex. Thank you. Merry Christmas to everyone. I think Santa Claus, जैसे बचपन में कहते थे पेरेंट्स की गिफ्ट्स देते हैं, so I somehow feel that Santa Claus is blessing me this year. And also I have great hopes from the year 2019. I have a resolution to work harder than before, and I also want my fans to have some resolution in their life for at least 1 year, and please follow it. Also मैं विश करती हूँ कि आप सभी का न्यू ईयर बहुत अच्छा हो और आने वाला साल उससे भी ज़्यादा अच्छा हो। Please go and watch Battalion 609. Thank you. आ जा। हाँ या हाँ ठीक है बैठ जा स्पर्श बैठ जा। नहीं आएगा ना, ये अत्याचार है हमारा। ऑर्डर माइक रखा है नहीं थोड़ा कुछ इलैबोरेट कीजिए सर आज के इवेंट के बारे में। वेल आज हमारा ट्रेलर लॉन्च था और इसमें मैं एक जनरल की भूमिका में हूँ, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सरहद के इस पार और उस पार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों फ़ौजी एक अहम डिसीजन लेते हैं जिसमें जनरल की मंजूरी की बहुत ज़रूरत होती है, पर वो बात इस हद तक बढ़ती है कि फिर हमें पीएम तक जाना पड़ता है। तो मेरी एक भूमिका एक जनरल की है, और ये जो हैं उसमें एक मुख्य भूमिका में है इंडियन आर्मी की तरफ से, और मेजर बलबीर की भूमिका में है, और पाकिस्तान की तरफ से भी हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं मनीष भाई। अभी आप कुछ बताना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में, आप बताइए। मेरा किरदार है कैप्टन जस्सी फिल्म में, और मेरे लिए एज एन एक्टर ये काफ़ी ट्रिकी था रोल प्ले करना। हर एक एक्टर को अपना रोल बड़ा ट्रिकी लगता है, तो आई एम नॉट एक्सेप्शनल केस, मुझे भी बड़ा ट्रिकी लगा अपना पार्ट। ये कैरेक्टर ऐसा है जो कि फिल्म में ह्यूमर भी क्रिएट कर रहा है, एक्शन भी कर रहा है, फाइट भी कर रहा है, रोमांस भी कर रहा है, सो इट हैज़ वेरी शेड्स। और थिएटर करने के बाद में और 2 फिल्में फगली और गोलो पप्पो करने के बाद में सबसे डिफ़िकल्ट कैरेक्टर जो मेरी लाइफ में था वो कैप्टन जस्सी का था, क्योंकि इसमें काफ़ी रेंज थी और काफ़ी कुछ था, इसमें रंग काफ़ी थे। जी सर आप बताइए आपके किरदार के बारे में। कि जब मुझे पहली बार डायरेक्टर साहब ने सुनाया बलबीर मुझे प्ले करना है, तो मुझे याद है मैंने जब ऑडिशन दिया था सबसे अजीब सी चीज़ हुई, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ,
पिक्चर आधी कंप्लीट होने के बाद मुझे पता चला, मुझे डायरेक्टर सर कहते हैं कि मैं तेरा ऑडिशन सबसे घटिया था, बेकार था, इसीलिए मैंने तुझे बलबीर के लिए लिया। और ये बात सही है एकदम, करेक्ट, क्योंकि वो कैरेक्टर ही ऐसा था। मैं कहा सर आपने तो बहुत कॉन्फिडेंस मेरा हाई कर दिया, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा था। बाकी मुझे लगता है शूट बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी फिल्म के लिए कि इट हैज़ टू बी रियल लोकेशन। और मैं सबसे खुश ये हुआ था कि हम रियल लोकेशन पे शूट किया, 40-50 दिन हम वहीं रहे। मुझे इतना भी याद है कि वहाँ पे जब हम शूट करते थे, वहाँ पे एक वॉशरूम भी नहीं होता था, तो हमें खुले में जाना पड़ता था। ओपन करना पड़ता था। हम इतना उस कैरेक्टर के अंदर गए थे, तो ये चैलेंजेस ऐसे जब फिल्म बनती है ना, तो ये बहुत मज़ा आता है। और ये मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ थी इसकी कि बहुत रियल एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, क्योंकि सिर्फ वॉर फिल्म नहीं है, इट हैज़ अ वेरी गुड ट्विस्ट। जैसे कि बताया गया था यूएसपी फिल्म की क्रिकेट मैच, तो वो एक जो एंगल है जो आप फिल्म में आपको पता चलेगा। सर आप थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए सर, आपका किरदार किस तरह का पाकिस्तान का रोल आपने निभाया है, क्या है आपकी नेगेटिविटी है पाकिस्तान में? यार मैं पाकिस्तान का रोल, ये पाकिस्तानी आर्मी का सोल्जर प्ले कर रहा हूँ। शोएब जमाल नाम है इस कैरेक्टर का। और ये क्या है, ये आदमी चाहता नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कुछ भी अच्छा हो, तो ये कुछ ना कुछ कांड करता रहता है, जिसको जहाँ लगता है कि यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये बिगाड़ देता है उन चीज़ों को। तो ये कमाल की बात है कि मैं क्राइम पेट्रोल करता हूँ, और क्राइम पेट्रोल में मैं पुलिस का कैरेक्टर करता हूँ, और यहाँ पे मैं आर्मी का कैरेक्टर करता हूँ। तो मतलब मुझे बहुत मज़ा है इस कैरेक्टर को करने में, बहुत एंजॉय किया, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। फिल्म में कुछ एक ट्विस्ट है, एक क्रिकेट मैच का क्या है? मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्विस्ट है वो ट्विस्ट आपके सामने बैठे हैं। दो कैरेक्टरों की मौत होती है, एक पाकिस्तानी आर्मी की, वो सोल्जर है जमाल, और एक इंडियन आर्मी सोल्जर, वो कैरेक्टर है। तो ये ट्विस्ट है, इससे ज़्यादा ट्विस्ट आप न पूछिए तो अच्छा है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 11 जनवरी को आके पिक्चर देखें और ट्विस्ट का आनंद उठाएं। थैंक यू सो मच। बड़ी फिल्म आ रही है, क्या कहना चाहिए बटालियन 609 के बारे में कुछ बताइए। बटालियन 609 इंडिया पाकिस्तान पे वॉर बेस्ड है। बेसिकली 1947 से जो झगड़ा चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, कश्मीर को मुद्दे के लगे, जगह के मुद्दे को लेकर, उसी के ऊपर बेस्ड है ये फिल्म। सर आप कुछ बताना चाहिए, दुबई से आप भारत आए ये फिल्म बनाने के लिए? मैंने बता दिया है पहले कि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत छोटी सी उम्र में मैं दुबई चले गया था, तो मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। और ये हमारे जो एक डायरेक्टर साहब है, इन्होंने बहुत साथ दिया है मेरा, और मैंने एक्चुअली उल्टा है, इन्होंने मेरा ज़्यादा साथ दिया है। हाँ उल्टा है, बोल सकते हैं, सभी बोल सकते हैं। सर फिल्म की स्क्रिप्ट में आपको क्या पसंद आया कि आप ये फिल्म करना पसंद? क्यों देशभक्ति के साथ जुड़ी हुई थी कुछ देशभक्ति, हाँ बेसिकली। सर क्रिकेट का क्या लॉन्च है? 11 जनवरी 2019। ओके, शोएब बिग एक्टर है फिल्म में, क्या कहना चाहिए, कैसा आपने कास्ट किया उसको, थोड़ा सा वो बताइए। मैंने राउंड अबाउट 200 से 300 लोगों को ऑडिशन लिया था। बेसिकली इट वाज ऑडिशन। शोएब स्टूड आउट समथिंग दैट ही हैड द पोटेंशियल ऑफ कामराज। एक एंगर चाहिए था, एक इमोशन चाहिए था, जो चीज़ें शोएब का मेरे कैरेक्टर कामराज में थी वो शोएब में दिख रही थी। दैट्स वाई द रीज़न ऑफ कास्टिंग वाज कामराज, शोएब इब्राहिम। 11 जैन को फिल्म रिलीज होने जा रही है, कम वक्त है, तो किस तरह की प्रमोशन होगी फिल्म की, और कितने थिएटरों में रिलीज कराने की? देखिए, प्रिंट और थिएटर के बताने की जिम्मेदारी बिग कर्टन की है। आई थिंक ही विल बी द बेटर आंसर, बिग कर्टन देंगे। लेकिन जहाँ तक प्रमोशन की बात है, प्रोड्यूसर साहब ने सब कुछ डाल दिया अपना इसमें। ही इज पुट हार्ट, इमोशंस, मनी, और सबसे बड़ा इमोशनल इकोनॉमिकल सपोर्ट। ही हैज पुट इन एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तीनों के बाद आप दिख रहे मीडिया के साथ। मैं इस बटालियन 609 के बारे में कहना चाहूँगा। मैंने ट्रेलर देखा, बहुत ही इफ़ेक्टिव है ट्रेलर, और सभी मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट जो इसमें हैं, बहुत ही इंटेंस परफॉर्मेंस उनकी देखी है मैंने। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वॉर के ऊपर एक अलग कंसेप्ट लेके फिल्म आने वाली है, जिसका क्रिकेट का गेम, उसका एक तो वॉर की गेम में क्रिकेट का गेम है, ये डबल गेम उसमें दिख रहा है, और मुझे लगता है कि लोगों को ये पसंद आएगी।
मैं बहुत होपफुल हूँ इस फिल्म के बारे में। और मिस्टर ललमानी और मिस्टर ब्रिजेश की ये पहली फिल्म है और वॉर को लेके फिल्म बनाना बहुत ही टेढ़ी खीर है, बहुत ही मुश्किल काम है जो कि इन लोगों ने किया है। मेरी दुआएं हैं इनके साथ, फिल्म बहुत अच्छी चलेगी। ओके सर, जिस तरह से फिल्म बनाया गया है वॉर स्पेस में, आप कैसे देखते हैं हमारे आर्मी को इस तरह से? हमारी आर्मी में ब्रेवरी की कमी नहीं है, बहुत ही बहादुर आर्मी है हमारी। सिर्फ जब भी हमको ये देखने में आया है कि उनके हाथ बांधे गए हैं और राजनीतिक रूप से उनको कंट्रोल किया गया है और इस वजह से वो कई जगह बहुत ही अपमानित भी हुए हैं। हम सब देखते ही हैं, हमको मालूम है जम्मू कश्मीर जो हालात रहे हैं। लेकिन अब उनके हाथ खुले हैं तो अभी आपने देखा होगा कि एक एक करके जिस तरह से ये टेररिस्ट ख़त्म हो रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। सो आर्मी के बारे में मैं बहुत होपफुल हूं और उनकी ब्रेवरी को लेके मैं उनके साथ खड़ा हूं। दुबई से यहाँ पर आकर फिल्म बनाते हैं और जब नसरुद्दीन शाह की बात की जाए वो इस तरह से कहते हैं कि मुझे देश में डर लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे? इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं इस कंट्री में, आपको लगता है कि आपको डर लगता है इस देश में रहने? मुझे तो कभी डर नहीं लगता और ना मुझे डर लगेगा। ये मेरा देश है और इस देश में रहने वाले हिंदू हों, मुस्लिम हों, क्रिश्चियन हों, सिख हों, सभी मेरे अपने भाई बंधु हैं। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये उनका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है। इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। कई लोग उनको बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ, इस तरह के लोग बोलते हैं, कहीं ना कहीं तो वो भी उनके अपने व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, व्यक्तिगत विचार हैं। सबको अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यहाँ पर, वो आप सब अपने अपने हिसाब से बुला करते हैं। तो इस बात को लेकर गृह मंत्री ने भी उनका खंडन किया इस बात को लेकर, तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है इस देश में रहकर और इस देश का ये करना। गृह मंत्री ने उनकी बात का खंडन किया, उनके स्टेटमेंट का खंडन किया। मैं भी खंडन करता हूँ, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये उनका अपनी व्यक्तिगत राय है। और कुछ एक नई फिल्मों के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग, जो मेरी फिल्में आने वाली हैं। आपकी फिल्म के बारे में बताइए सर। तो जनवरी में मेरी 2 फिल्में, बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं। 11 जनवरी को जिस दिन ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, पहलाज निहलानी साहब की रंगीला राजा, आपने सुना होगा, बहुत कंट्रोवर्शियल हो गई थी इसके बारे में। वो फिल्म रिलीज़ हो रही है, बहुत ही क्रूशल रोल है मेरा उसमें। 30 जनवरी को एक हॉलीवुड की पिक्चर रिलीज़ होने वाली है, द गांधी मर्डर। उसके भी वही ट्रेलर आ गया है और बहुत ही इफ़ेक्टिव लग रही है। वो पहले अभी हॉलीवुड में रिलीज़ हो रही है 30 जनवरी को, पहले अमेरिका में। तो ये 2 फिल्में हैं जनवरी में और एक फिल्म है फरवरी में, उसका नाम है मैं आऊँगा ज़रूर। ये फिल्म हमने पूरी स्विट्ज़रलैंड में शूट की है और चंद्रकांत सिंह ने ये फिल्म डायरेक्ट की है। एक मर्डर मिस्ट्री है जिसमें मैं पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ जो मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करता है। इसके बाद मार्च में एक और फिल्म है, मतलब लाइन से लगभग हर महीने एक फिल्म रिलीज़ के लिए तैयार है। मार्च में जो फिल्म रिलीज़ होने वाली है उसका नाम है झलकी। झलकी ये एक चाइल्ड लेबर के ऊपर फिल्म है। इसमें बोमन ईरानी वगैरह हम सब लोग हैं इसमें मैं एक दलाल का कैरेक्टर कर रहा हूँ। फिल्म बहुत ही अच्छी है। इस तरह से ये तकरीबन 4 फिल्में हैं जो मेरी अभी जनवरी, फरवरी, मार्च में रिलीज़ होने वाली हैं। क्रिसमस मैं दुआ करता हूँ देश में खूब सुख शांति और प्रॉस्पेरिटी आए, सभी लोग खुशहाल हों। ऑल द बेस्ट, गुड लक। बताओ क्या कहना चाहिए आज फिल्म के बारे में, आप क्या कहना चाहिए? अच्छा, फिल्म के बारे में, फिल्म बहुत ज़बरदस्त फिल्म है। मैं यहाँ पर अपने भाई शकील हाशमी के लिए आया हूँ, उनको सपोर्ट करने के लिए। वो इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर हैं
और सिर्फ उनके लिए आया हूँ। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और बाकी इनके प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं, इनके डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आई एम हियर ओनली फॉर शकील हाशमी। बहुत कमाल ट्रेलर था। हाँ वाह, क्या ट्रेलर था यार, ट्रेलर था अमेजिंग ट्रेलर था भाई, मज़ा आ गया जी। ओके सर, जैसे कि बिग बॉस खत्म होने जा रहा है, क्या कहना चाहिए बिग बॉस को लेकर, क्या कहना चाहिए आप? कौन जीतेगा? स्वामी महारोजी है, दीपिका है, श्रीशांत है, दीपक ठाकुर है, रोमिल चौधरी है, क्या कहना चाहिए दीपक ठाकुर के बारे में? देखिए बेसिकली बिग बॉस को मैं फॉलो कर रहा हूँ वूड पे, बिकॉज मैं यहाँ इंडिया ज़्यादा होता नहीं हूँ, यूके यूएस कॉन्सर्ट्स थे मेरे, मिडल ईस्ट में थे, लेकिन मैं वूड पे और ऑनलाइन देख रहा हूँ। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा वो जो एंटरटेनमेंट फैक्टर था वो बिग बॉस में इस बार मिसिंग था, लेकिन वो अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। हम बिग बॉस 8 में थे, तो हमारा बिग बॉस जो था 4.5 महीने चला, तो मतलब सारी TRP तोड़ दी। उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। इन लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत अच्छा किया, और मेरे हिसाब से जो अब लग रहा है ये लास्ट फिनाले वीक में, मुझे लगता है कि जैसे श्रीशांत, उनके लिए हर चीज़ राइट जा रही है। रोमिल, श्रीशांत, रोमिल, दीपक, दीपिका 3rd 4th पे मुझे दिख रहे हैं, लेकिन रोमिल और श्रीशांत 1st 2nd पे नज़र आ रहे हैं मुझे। अरे भैया, महिला के ऊपर गलत बात इस बार तो ऐसा हुआ है, बिलो द बेल्ट मारा है हर चीज़ पे, महिला हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट नहीं आया। जैसे दीपक जो था शुरू में एंटरटेनमेंट लेके आया, गा रहा था, फिर वो गेम में इतना बिजी हो गया कि वो छूट गया। जैसे हम लोग क्या है, मस्ती करते, लड़ाइयाँ तो हमने बहुत किए, लेकिन मस्ती करते थे, इसको खींच, इसको इधर की उधर किया, मस्ती किया, एंजॉय किया, जो भी किया। आई वॉज मेकिंग श्योर दैट एंटरटेनमेंट आना चाहिए, दैट्स व्हाट आई वॉज देयर फॉर। लेकिन इस बार एंटरटेनमेंट फैक्टर वो है नहीं, वो मज़ा नहीं आ रहा है। और बस वीकेंड में सलमान सर को देखने आते हैं, बिकॉज सलमान सर इज़ लुकिंग ग्रेट, इज़ डूइंग गुड एज ऑलवेज, तो उनको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन कंटेस्टेंट से थी वो उस लेवल पे नहीं हो पाया। सर, आपको लगता है रोमिल और टॉमी की जो प्यार की जोड़ी है, आपको क्या लगता है ये सचमुच का? नहीं, मुझे नज़र नहीं आता। देखिए रोमिल जो है बेसिकली वो मैनिपुलेटिव दिमाग से खेलने वाला बंदा था, जो कि बहुत अच्छा जा रहा था, वो भी एंड में डाउन हुआ है आके। जिस हिसाब से उसको जाना चाहिए था वो नहीं जा पाया, वो उस प्रेशर नहीं झेल पाया, बिकॉज बिग बॉस के घर का प्रेशर झेलना कोई आसान बात नहीं है। इट्स ए वेरी बिग थिंग। वो एक ऐसी जगह है कि बड़े बड़ों के बिग बॉस के घर में सिर्फ बिग बॉस ही खेलते हैं, कोई दूसरा कंटेस्टेंट खेलता नहीं। मैं 4.5 महीने रहा हूँ यार, मुझसे आप पूछिए, बिकॉज इट्स ए क्रेजी हाउस। तो वहाँ पर सोमिल, रोमी, इनकी केमिस्ट्री लोग बनाने की कोशिश की, दीपक ने अपनी केमिस्ट्री बनाने की कोशिश की, एंगल लगाने, बिकॉज वो प्री प्लान थे, वो प्लान करके आए थे। और बिग बॉस में प्री प्लान चलता नहीं है, अच्छों की हो जाती है बिग बॉस के घर में। सर, आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपको इस देश में रहने को डर लगता है? या इनटॉलरेंस की बात करते हैं कि आपको नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मुझे इस देश में रहने को डर लगता है, तो आपको भी डर लगता है इस देश में? भाई मैं तो इस देश में डराता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर बहुत सारे प्यारे दोस्त हैं जिनके साथ हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, मेरे गेम से डरते हैं, मेरी एक्टिंग से डरते हैं, मेरी सिंगिंग से डरते हैं। क्या यार, मेरा हिंदुस्तान दुनिया में ऐसी कोई जगह ही नहीं है। मैं वर्ल्ड में अमेरिका, यूके, यूएस, मिडल ईस्ट, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, हांगकॉन्ग, पूरी दुनिया में घूमा हूँ। और वहाँ के घूमने के बाद, वहाँ पर काम करने के बाद जब अपने देश में आता हूँ, जो सुकून मुझे इमिग्रेशन पास करके मिलता है अपने देश में, वो कहीं नहीं मिलता है। सब बकवास बातें हैं। सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मेरा देश यही पैदा हुए, यही मरेंगे। किसी को जो लगता है लगने दो भाई, हिंदुस्तान से अच्छा देश पूरी दुनिया में नहीं है। थैंक यू।